recording of this. Anyone is recording the training? Yes, ma'am. Fine. You can share the later part. So as of now, the transcription on which we are going to start, it is on a platform called Shunya. Now, till date, if at all you people would have participated in any kind of transcription, I hope yes, as per your team heads, there were number of rules and regulations you have gone through. For example, it would be like if there is some other language available, let's say some other language comes within a speech, we need to use a foreign tag. If you find any particular word has to be said but it is being repeated, you have to use tilde key. Ma'am, I'm really sorry, ma'am, to interrupt you. Are you recording from your side? You are recording, right? I did not start the recording. No, ma'am. Actually, there is no option showing in my side. Uh, yes, ma'am. You can continue. Yes. Okay. So, in different types of platform, you would have seen there would be number of rules, and we are being comfortable like using if the transcription, like listen the audio and whatever you listen, we write that. Minimal usage of tags. People normally the transcribers prefer to use such kind of tools where we do not actually uh, have any tag issue, or much more tags are not being written, and easy flexibility kind of things should be provided. Now, before starting any transcription rules and guidelines, I would go through a run through of a project. In this transcription project, the major role will be played by the QA person. It's not by the annotator, not by the transcriber, not by a segmenting people persons, no one, but it is by QA person. The reason is with client, let's say with us only, we are having number of vendors working with us. Now, when number of vendors are working with us, we do have to give files to everyone, and they will submit as per their wish or as per their completion. So once they complete, they submit and the file goes for the final check for the QA part. Now, in that case, the client doesn't know whose vendor is who and why they are going to submit. So in that case, what we consider is uh, we have to give the complete 100%. Here we don't have WER or TER for 90%, nothing is there. It's completely 100%. Else, let's say your batch is going for a check and client is checking some random files. Let's say for 10 files or 13 files, you have completed some 50 files and some 10 files has been checked only. And if client finds any error, the entire batch will be given back. For example, Utkarsh, in your team you have 5 members. Let's say your 3 members worked properly. The 2 members did the mistake, but when you get back your files, you will get entire 5% complete work file back to get the rework done. To check if the same mistake is there or not there, existing or not existing in your file. I hope you got what I'm trying to say. Uh, Hi Manita, Mahi this side. I just Yeah, joined. hi, Sorry, ma'am. I was stuck in another meeting. Could you please explain once again this instructions part? ओके, बात ऐसा है कि हम लोगों को जब अभी क्या ट्रांसक्रिप्शन में हम जब लॉग पे काम करते हैं या फिर किसी दूसरे टूल पे काम करते हैं, फाइल वाइज Mm-hmm. हमारे पास एरर लिस्ट आता है कि ये पर्टिकुलर फाइल में एरर है और ये बाकी पास है। यहाँ Mm-hmm. पे जो डिलीवरी होगा ये बैच वाइज डिलीवरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा आपको कि यहाँ कोई मैनुअल इंटरप्शन नहीं है बीच में। आपका Okay. एक टीम होगा, एनोटेटर टीम होगा, एक क्यूसी टीम आपको बिठानी पड़ेगी। टीम इन द सेंस, इट इज इन द वर्ड्स, ये क्लाइंट के वर्ड्स में टीम है। अगर आपके पास 4 बंदे हैं, 4 के ऊपर कोई एक बंदा बैठता है, इट इज वेल एंड गुड। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दैट Okay. पर्सन कैन QA वर्क आउट।
क्यूए भी हमारे टीम से, हमारे पास लाइक 5 हैं, तो 5 में से 4 काम करेंगे और 1 उनका क्यूए करेगा। यू हैव टू डू दैट, अपने फाइल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेनी है, बिकॉज वंस इट गेट्स रिजेक्टेड, अगर इस काम का पहला फोकस ये है कि अगर आप अपने फाइल का क्यूए कंप्लीट सही, मतलब फाइल अगर डिलीवरी नहीं हुई क्लाइंट के पास, जितनी जब तक ये रिवर्क नहीं आएगा तब तक आपको पेमेंट भी नहीं होगा। ओके। तो आपको रिवर्क नहीं लाना है। एक बार रिवर्क आ गया, ठीक है, समझ में आता है, इट हैपेंस। छोटा मोटा एरर, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम परफेक्ट निकलेंगे, तो एक बार रिवर्क आएगा, इट ओके। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको हम लोगों ने डबल चेक पे रखा है। डबल चेक कहाँ पे होगा, क्लाइंट हमें एक एक क्यूए आईडीज दे देगा फॉर एवरी ओन टीम। जैसे आप अपने टीम का अगर 4 बंदे हैं, आपने एक बंदे को क्यूए बना दिया है, वो सारा बंदे, जितने सारे लोग हैं, वो अपना अपना काम कर लेंगे, और एक बंदा रहेगा जो उनका क्यूए करता रहेगा। सबमिशन जैसा चलता रहेगा, वो क्यूए करता रहेगा। वो जैसे क्यूए खत्म करता है, देन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, वो वहीं पे टीम को हाईलाइट कर देगा, और वो उन्हीं के पास, अपने ही क्यूए से अपने एनोटेटर के पास रिवर्ट हो जाएगा। क्लाइंट के पास नहीं जाएगा, ना क्लाइंट को पता चलेगा। ओके। So that is the only reason why we have asked client to give us this thing. आपको दूसरे टीम का फाइल चेक नहीं करना है, यू हैव टू चेक ओनली योर फाइल। जो फाइल आप करोगे उसी का ही क्यूसी आपको करना है। ऑब्वियसली आप क्वालिटी आप ही को डिलीवर करना है, वरना फाइल का पेमेंट कैसे लेना है फिर। ओके, तो अभी आपने टीम को शून्य ट्रांसक्रिप्शन प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना आपने बता दिया। ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हुआ है, 1:30 को ही मीटिंग स्टार्ट थी। ओके, नहीं मैं ये थी तो इसलिए ठीक है। ओके, फाइन। सो ये आपका कंडीशन है। सेकेंड थिंग, आपका थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, यहाँ पे ऑडियोज कैसे होते हैं, स्पीकर्स कैसे होते हैं, तो शायद आपको क्लैरिटी आ जाए काम पे। यहाँ पे ऑडियोज आपका 5 सेकेंड से लेकर, जो एक फाइल आएगा वो 5 सेकेंड से लेकर मैक्सिमम 7 मिनट्स तक का होगा, नॉट मोर देन इट। आप लोग अगर लॉफ्ट पे काम कोई भी किया हुआ है, तो वहां पे आपको कुछ 17 मिनट्स, 20 मिनट्स ऐसा फाइल आता है, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम फाइल 7 मिनट्स का ही आएगा। पूरे डिस्कशन में कुछ मैक्सिमम आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर, बहुत रेयर ऑडियोज होंगे, या फिर आप अगर 50 फाइल्स दिन भर में खत्म कर रहे हैं, 50 फाइल्स में आपको 10 फाइल्स ऐसा होगा जहाँ पे डुअल स्पीकर हो। ओके। ओके, अच्छा, नाउ फर्स्ट गोइंग टू सेगमेंटेशन। मैं सेगमेंटेशन का आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिखाती हूँ, मैं उसका डिटेल नहीं बताऊंगी। रीजन बिंग, अभी किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन अभी हम लोग आईडी पे जब तक नहीं दिखाएंगे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, एंड कहाँ पे कैसा क्या लोकेट होता है, कैसा दिखता है पोर्टल, वो मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा दूंगी। ठीक है, सो ये आपका पोर्टल का व्यू है, जहाँ पे आप जब फाइल ओपन करोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। ये फाइल डिटेल्स के लिए ये आपकी फाइल की आईडी है। स्पीकर डिटेल्स इज ऑफ इस ऑडियो में जो स्पीकर है वहां पे कौन है कैसा है वो मेंशन करने के लिए है। टैग्स यहीं पे मिलेंगे आपको, खुद से लिखने नहीं है। यहाँ पे 100+ टैग्स लिखे हुए हैं हर किसी चीज के लिए। आपको बस जो टैग चाहिए आप इधर क्लिक करोगे, वो ड्रॉप डाउन में आएगा, और आपको बस सिलेक्ट करना है, वो अपने आप वहां पे आपके ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स में चला जाएगा। अगर आप कहीं काम करते वक्त आपको लगा कि आप अर्जेंसी में कहीं जाना चाहते हो, आप अपने फाइल को यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव कर लोगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम आप ओपन करोगे इट विल बी कम। हु इज प्रीति? प्रीति आप किसके टीम से हो? या माय टीम, फ्रॉम माय टीम। माही, आप अपने टीम से एक बार बोल दो कि वो सारे आके ज्वाइन कर लें। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो मैं बार बार वही सेम चीज रिपीट करूं। नो नो, यू कैन कंटिन्यू। बाकी मैं हूँ, बाकी सारी चीजें मैं देख रही हूँ। एक्चुअली दे आर इन कॉलेज राइट नाउ, सो दैट्स
You can continue. फाइन, थैंक्स। यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन था एज अ सेम पोर्टल ओनली, एक ही पेज पे ही है। ये फर्स्ट पोर्शन है। स्क्रॉल डाउन करने से ये पोर्शन आता है। तो यहाँ पे स्पीकर की लेबलिंग होती है, ये आपका प्ले बटन रहेगा। यहाँ पे स्पीकर का, जब आप स्पीकर 0 और स्पीकर 1, यहाँ पे स्पीकर 0 मतलब अगर कोई फीमेल पर्सन स्पीकर है तो वहां पे आपको 0 ही लगाना है। अगर कोई मेल पर्सन है, 2 हो, 3 हो, 4 मेल पर्सन एक साथ है, वो स्पीकर 1 पे ही रहेंगे। सिर्फ हमें काउंट्स बदलना है, काउंट टोटल कितने। अगर एक ऑडियो में लेट्स से 1 फीमेल एंड 2 मेल पर्सन आर टॉकिंग, तो वहां पे स्पीकर 0 1, स्पीकर 1 2, यानी मेल पर्सन 2 जने हैं और फीमेल पर्सन 1 है। ये टैगिंग बाय डिफॉल्ट है, इसमें आपको कहीं चेंज नहीं करना है कि फीमेल का नाम लिखेंगे, एफ लिखेंगे, एम लिखेंगे या पूरा फीमेल लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। फीमेल स्पीकर के लिए टैग स्पीकर 0 है, मेल स्पीकर्स के लिए टैग स्पीकर 1 है। होप आई एम क्लियर। यहाँ से आपका स्पीड, ऑडियो का स्पीड, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Ma'am, I just want to ask, like, for this portal, we have to sign in only, no? The way you told me that there should not be any Google sign in. यहाँ पे भी साइन अप और साइन इन का कुछ क्राइटेरिया है ये पोर्टल पे? आपको आईडी एंड पासवर्ड हम दे देंगे। ओके ओके आपके टीम हेड्स के पास आईडी एंड पासवर्ड होगा, दे विल डिस्ट्रीब्यूट। ओके, थैंक यू। ओके, ये अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है टू गेट अ ओवरव्यू कि पोर्टल ऐसा दिखता है, कुछ इतना बड़ा रिस्क नहीं है पोर्टल हैंडलिंग में। Just to give you assurance that your portal is very easy handling portal where you can access and you can track your things. यहाँ पे आप अपना ऑडियो स्पीड चेक कर सकते हो। दिस इज योर वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ द ऑडियो। हाँ, एक चीज और, इट्स वेरी मच मैंडेटरी टू यूज ईयरफोन्स व्हाइल डूइंग दिस ट्रांसक्रिप्शन। द रीजन बीइंग, बहुत बार ये वॉल्यूम कंट्रोल नॉर्मल रेंज पे रहता है, ये हाई रेंज पे करना पड़ता है, लोग भूल जाते हैं। सो अगर आप ईयरफोन्स यूज नहीं करोगे, कॉन्वर्सेशन आपको बहुत स्लो साउंड में आएगा। और अगर आपने यहाँ पे स्किप किया और रिजेक्शन रीजन में डाला कि नहीं सुनाई नहीं दे रहा है आवाज, और किसी दूसरे ट्रांसक्राइबर के पास गया और उसको वो सुनाई दिया, देन आपके स्किप के ऊपर आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। अननेसेसरी स्किप पे आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो बी केयरफुल बिफोर मार्किंग दिस ऑप्शन स्किप। आप अवॉइड ही करना। कोई भी फाइल में अगर आपको आवाज सुनाई ना दे, आस्क योर टीम हेड्स टू पिंग अस। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पे अभी इसी बॉक्स के नीचे स्क्रीनशॉट लिया नहीं गया है, एक छोटा सा बॉक्स आएगा, टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम पेंट में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, आपको उसी टेक्स्ट बॉक्स में आपको ट्रांसक्राइब करना है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूल इज, आपको सिर्फ जो सुन रहे हो उसको अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखना है। यू डू नॉट नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इन दिस। यहाँ इंग्लिश फॉन्ट्स, इंग्लिश वर्ड्स का आपके मराठी में फॉन्ट्स यूज करके लिखने का ऑप्शन मिलेगा आपको, बट आपको इंग्लिश फॉन्ट कहीं पे यूज नहीं करना है। इट इज प्योरली योर नेटिव लैंग्वेज। सिर्फ जो आप टैग्स लिखोगे, वो जो टैग्स आप सिलेक्ट करोगे अपने यहाँ से, वो इंग्लिश में रहेंगे। Got it? Now let's proceed through your guidelines of segmentation. When you proceed through the guidelines of a segmentation or when you proceed to do segmentation, पहला स्टेप है आप पूरा सुनो। जो भी जितने सेकंड का ऑडियो है, जितने मिनट का ऑडियो है, एक बार पूरा उसका रन थ्रू करो। वंस यू कंप्लीट दिस रन थ्रू, आपको दो चीज मिलेगा। एक, वॉइस, जो स्पीकर्स है वो कितने स्पीकर है, पहला कंसिडरेशन। सेकंड कंसिडरेशन आपको मिलेगा कि जो पॉजेस है, ऑब्वियसली कभी भी हम कहीं पे भी बात करते हैं वहां पे पॉज लेते हैं। आई एम रेस्ट्रिक्टिंग एनी एडमिशंस एज ऑफ नाउ। प्लीज आप अपने टीम्स को बोल दीजिएगा, अपने खुद ही मीटिंग अरेंज कीजिए। मैं अभी किसी को ऐड नहीं करूंगी। और
Okay, sure. आपका पहला सीन है कि आपको कंप्लीटली एक्सट्रीमली सॉरी, फर्स्ट आपको पूरा ही ऑडियो सुनना है। सुनने के बाद आप क्या क्या डिसाइड करोगे, स्पीकर कौन है, कितने स्पीकर्स हैं, देन ऑडियो में पॉज है या नहीं। अगर पॉज है, लेट्स से ऐसा बहुत बार होता है, हमें कोई पूछता है आपने खाना खाया, जी सर, फिर जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम खुद साइलेंट होते हैं, जब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर हाँ ना या फिर जो भी आंसर देना था दे के फिर चुप हो जाता है। तो वो सेकंड्स हमें देखना है कि क्या वो नॉर्मल मिनिमम जितना रिक्वायर्ड सेकंड्स है उससे ज्यादा है या फिर कम में है, ये चीज पता चल जाएगा। दूसरा आपको ये पता चल जाएगा अगर हमारे रिक्वायर्ड सेकंड से ज्यादा है तो हमें सेगमेंट को स्प्लिट कहाँ करना है। ये 3 चीजें जहां पे आपको पता चल जाएगी, आपका सेगमेंटेशन का काम वहीं खत्म हो जाएगा। तो सेगमेंटेशन करना कैसे है, आपका एक सेगमेंट 30 सेकेंड्स का होगा, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। जहां 7 सेकेंड्स का आएगा ऑब्वियस सी बात है वहां पे तो 30 सेकेंड्स का हो नहीं सकता है, तो एंटायर एक ही सेगमेंट बनेगा। जहां से स्पीच शुरू हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे अब ये वाला स्क्रीन है, सॉरी, अब ये वाला स्क्रीन है। यहाँ पे टोटल ही 4 सेकेंड्स 4.5 सेकेंड्स का ऑडियो है। तो यहाँ पे जहां से स्पीच स्टार्ट हुआ है, जहां से आपको ऑडियो वेव्स दिख रहा है, आपको ये सुनना है। ऐसा नहीं है कि जहां ऑडियो वेव्स दिख रहा है वहीं पे कर्सर क्लिक किया और हम लोग सेगमेंट बना दिए। एक बार ऑडियो पूरा प्ले करना। अगर ये पूरा साइलेंट है और यहाँ पे कुछ भी स्पीच नहीं है और यहीं से ही स्पीच शुरू हो रहा है, पुट द कर्सर हियर, माउस को होवर करो, जहां पे स्पीच खत्म हो गया वहीं पे माउस को क्लिक डाउन करो, मतलब माउस पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली वो सेगमेंट कवर कर लेगा। फिर आप प्ले बटन क्लिक करके अपना ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। ये एक केस है। दूसरा केस क्या है, अगर ऑडियो आपका इस तरीके से आया, थोड़ा सा ज्यादा और बड़ा ऑडियो है, देन आपको क्या चेक करना है, आपको 30 सेकेंड्स का ऑडियो डिवाइड करना है। पहले तो 30 सेकेंड्स का एक सेगमेंट बनेगा। 30 सेकेंड्स का जहां पे आप एक ऑडियो पे सेगमेंट बनाते हो, आपको ये चेक करना है कि स्पीच के बीच में कहीं पे भी पॉज 10 सेकेंड या उससे ज्यादा का तो नहीं है। अगर है देन यू हैव टू स्प्लिट द सेगमेंट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मुझे 10 सेकेंड की टोटल 10 सेकेंड का पॉज है, यहाँ पे जहाँ ऑडियो दिख रहे हो यहाँ पे 10 सेकेंड का पॉज है। तो मैं क्या करूंगी, 10 सेकेंड से पहले वाला जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है या फिर एक लॉजिकल पॉज है जहां पे मुझे कहीं वर्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, मैं वहीं पे ही एक सेगमेंट कंप्लीट करूंगी। देन नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होगा फिर से जहां से स्पीच स्टार्ट हुआ है। एग्जाम्पल लेट्स से हम ये वाला कंसिडर करते हैं जहां पॉज है। अगर मुझे यहाँ सेगमेंट 30 सेकेंड का करना है और ये वाला पोर्शन उसका 10 सेकेंड है, एक सेकेंड रुको, स्क्रीन दिख रहा है आपको? नाउ लेट्स कंसिडर कि ऑडियो का ये पहला सेगमेंट 30 सेकेंड्स का हो गया। अब मुझे दूसरा सेगमेंट 30 सेकेंड का यहीं से करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट की और मुझे यहाँ पे मेरा 30 सेकेंड का सेगमेंट एंड हो रहा है। मैंने यहीं पे माउस क्लिक कर दिया। वंस माउस क्लिक किया बट यहाँ पे फिर मुझे दिखा कि ये 10 सेकेंड्स का गैप है। यहाँ पे जो गैप है वो ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स का है। तो मैं अभी क्या करूंगी, मुझे अभी ये करना है कि 10 सेकेंड से पहले जहां पे स्पीच खत्म हो रही है और वर्ड्स नहीं कट रहा है, मैं वहीं पे सेगमेंट को ब्रेक कर दूं, यानी वहां एक ही सेगमेंट खत्म करूं। ये ऐसा एक सेगमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे वर्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे एक सेगमेंट ले लूं, नहीं तो आप थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे सेगमेंट ले सकते हो ताकि वर्ड्स खत्म हो जाए। आपको ये सेगमेंट
ऐसे तैयार करना है जैसे वर्ड ब्रेक ना हो। अब जहां से फिर से मुझे नेक्स्ट सेगमेंट जो करना है, ये 10 सेकेंड का गैप छोड़ के जहां से स्पीच शुरू हुआ है नेक्स्ट सेगमेंट वहां से शुरू होगा, फिर यहां से मुझे 30 सेकेंड्स देखना है। समझ में आया? गेटिंग बैक अगेन, ये सपोज आपका कंसिडर इट एज 7 मिनट्स का ऑडियो या 10 मिनट्स का एक ऑडियो, 7 मिनट्स का एक ऑडियो आपके पास आया। पहला 30 सेकेंड्स का आपने एक सेगमेंट बनाया, दूसरा सेगमेंट आप जो 30 सेकेंड्स बनाने जा रहे हो उसी 30 सेकेंड्स के अंदर आपको 10 सेकेंड का एक रेगुलर पॉज मिला, कंटिन्यूस पॉज मिला। तो आप क्या करोगे, वहां 30 सेकेंड के सेगमेंट को आपको काटना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है उसका शॉर्टकट की जब टूल आ जाएगा मैं आपको तब बताऊंगी लाइव करके। एज ऑफ नाउ आप थीम को समझिए। तो 10 सेकेंड पे हमें ब्रेक करना है, तो जहां स्पीच खत्म हो रही है, वर्ड नहीं कट रहा है 10 सेकेंड से पहले, हमें वहां पे ही सेगमेंट को स्प्लिट कर देना है। नेक्स्ट जो सेगमेंट बनेगा फिर से जहां से स्पीच शुरू हुआ है साइलेंस के बाद या पॉज के बाद, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। आई होप नाउ आई एम क्लियर। Yes, it's clear. Anyone who has raised hand? Actually, it was me, like by mistake, and it was raised. Okay, no issues, fine. अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज है, अगर कहीं पे आपको कॉन्वर्सेशन मिला, कॉन्वर्सेशन में कहीं पे भी आपको लाइक यूज करना पड़ा, जैसे एक क्वेश्चनर है, कोई किसी को क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर कर रहा है, तो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नहीं तब तक इट इज बट ऑब्वियस द पर्सन हु इज आंसरिंग वो साइलेंट रहेगा। जैसे तुमने आज खाना खाया, हाँ जी, क्या खाया, सर दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी खाई। तो अभी जहाँ पे वो खाना खाए, हाँ जी के बाद जब रोटी दाल सब्जी के बीच में जो ये नॉर्मल फ्यू सेकंड्स का गैप आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, वहां पे पॉज टैग यूज कर सकते हो। ये आप लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पॉज लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप टैग ऑप्शन से क्लिक कर सकते हो, बट नॉर्मली ये टैग हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर सिर्फ जो ड्रॉप डाउन में सिर्फ नॉइज टैग्स रहते हैं। इसमें किसी को कंसर्न जो समझ में नहीं आया? No, it's clear. इट्स क्लियर, राइट। सो अगर ये आपका क्लियर है तो आपका सेगमेंटेशन पार्ट क्लियर हो गया। बाकी का जो सेगमेंटेशन का रूल्स हमें दिखना है, लाइक सबके मन में होगा कि हम सेगमेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, सेगमेंट स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स कहाँ अपीयर होता है, ये सब अगर देखना है देन we will have our training done for ID, sorry, for this segmentation by tomorrow second half or late evening। तो या तो फिर मैं आपको सेगमेंटेशन जब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ उसका एक वीडियो शेयर हो जाएगा, या फिर आप लोग अगर ज्वाइन कर सकते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो shall we proceed for transcription? If anyone doesn't have any kind of doubt to ask, guys, be bit prompt because आपको अगर नहीं समझ में आएगा, बीइंग अ ट्रांसक्राइबर अगर आप लोग सही से करोगे नहीं, आपके क्यूए पर्सन के ऊपर लोड बढ़ेगा। क्यूए पर्सन अगर गलती से कुछ गलत समझ के आगे बढ़ा दिया फाइल को तो सबका काम रुक जाएगा, रिवर्स के लोड्स पेंडिंग चलते जाएंगे और किसी का मेहनत कहीं पर रंग नहीं लाएगा। तो जितना लोग आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है पूछना, हिंदी में पूछना है पूछिए, मराठी में पूछना है, जिसको हिंदी आता है आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज कन्वर्ट, बिकॉज नॉर्मली मुझे मराठी आती नहीं है, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश। बट पूछिए, कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है रोकिए और पूछिए खुद से, टीम हेड ही पूछेगा, उसके लिए वेट मत कीजिए। So, moving towards the guidelines of transcription.
ट्रांसक्रिप्शन, हर एक ट्रांसक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में एक कॉमन रूल है फॉर डेट्स, करेंसी एंड नंबर्स। नंबर्स जब भी बोला जाता है वो स्पेल आउट किया जाता है, मतलब स्पेलिंग के साथ लिखा जाता है, और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। कोई बोलता है 1983, तो हम लोग उसको 19 फिर 83 ही लिखते हैं। कोई बोलता है 1983, वो वैसा ही लिखाते हैं, ONE स्पेस THOUSAND ऐसे करके पूरा लिखा जाता है। कोई बोल, मान लीजिए हम लोग हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, स्पीकर बोल रहा है 1985, तो वहां पे 1985 ही लिखा जाता है वर्ड्स में, हिंदी के वर्ड्स में, हिंदी फॉन्ट्स में, जैसा बोला गया। यहाँ पे जब आपको नंबर्स बोले जाएंगे, जैसे मान लीजिए 2005 बोला गया, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको उसमें उसको भी आपके रीजनल लैंग्वेज में लिखना है। टोन रहेगा आपका इंग्लिश का, फॉन्ट रहेगा मराठी का। समझ में आया? मैम मतलब अगर 2023 है अगर इंग्लिश में, तो लिखते वक्त मुझे 2023 असंच लिहायला नहीं लागणार, नहीं इंग्लिश इन नहीं मराठी हैव टू राइट। नहीं। अगर आपका स्पीकर है, अब देखो दो चीजें, आपका स्पीकर ऐसे, जैसे मैं एग्जांपल हिंदी में दे रही हूँ, आप समझ जाना कि मराठी में जब नॉर्मली कॉन्वर्सेशन होगा तो कैसे होगा। मैं ओके बोली मैं इंजीनियरिंग 2021 में पास की थी, तो मुझे यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा स्पेलिंग में 2021। मैं पूरा स्पेलिंग में जैसे लिखते हैं हिंदी में वैसे ही लिखूंगी। बट अगर मैं बोलूंगी मैं इंजीनियरिंग 2021 में क्लियर की थी, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगी, 2021 ही लिखूंगी, बट वो हिंदी फॉन्ट में रहेगा। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। अच्छा समझ। ठीक है। हाँ हाँ। द सेम इज विद करेंसी। कोई बोलता है कि 500 रुपया दो, तो 500 रुपया ही लिखना है। कोई बोलेगा कि मतलब वो जो टोन में मतलब इंग्लिश में बोल रहे तो भी मराठी में मुझे मराठी इंग्लिश में का ही ही ये लिखना लिखना है। है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ओके ओके समझ गई। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर्स, करेंसी और डेट्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके ठीक है, ये सेट क्लियर है, पहला नंबर आपका। किसी और को डाउट, कुछ और दिमाग में आया हो कि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा भी होता था दूसरे प्लेटफॉर्म में, तो अभी इसमें कैसे करेंगे? किसी और को कुछ पूछना है? Is there any question? No, ma'am. नो। There is no question. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हम अब्रीवेशंस पे। द सेम गोज फॉर अब्रीवेशंस। हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अब्रीवेशंस आते ही उनके पास टैग होता था। हम कुछ टैग्स यूज करके अब्रीवेशंस को लिखते थे। कहीं पे ऐसा होता था कि अब्रीवेशंस को कैपिटलाइजेशन में लिखा जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसा वो स्पेल होता है आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है, बट अपने लैंग्वेज के फॉन्ट में लिखना है। जैसे मुझे कोई बोलेगा SBI बैंक जाना है, तो मैं हिंदी में क्या लिखूंगी, ए स एस हो गया, स में हलंत दे दिया, फिर बी लिखा, ब में बड़ी की मात्रा, फिर आई। तो वैसे आपको भी लिखना है, आपके फॉन्ट में ही लिखना है मराठी में। SBI जैसे बोलते हैं, IIT बोलते हैं। इंग्लिश में कुछ नहीं रहेगा, टोन इंग्लिश का रहेगा, फॉन्ट आपका रहेगा। ठीक है, दोबारा समझाऊं? रिपीट करना है तो बता दीजिए, नहीं तो विल मूव अहेड। No repetition, ma'am. अच्छा, अभी एक चीज और है। SBI IIT तो फिर भी समझ में आता है कि IIT बोला गया, स्पेल किया गया, इसलिए हम एक एक करके लिख देंगे। अब है कॉलेजेस का नाम है MET करके आता है, जो MEITY है एक्चुअल में, तो कुछ लोग उसको MET बोल देते हैं या फिर मिट्टी बोल देते हैं। तो मिट्टी बोला गया है तो आपको मिट्टी ही लिखना है।
अगर मी ITY बोला गया है तो मी लिखना, फिर आई लिखना, फिर टी लिखना, फिर वाई लिखना, बट फॉन्ट सबका मराठी में रहेगा। जैसा वो प्रोनाउंस करेगा आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है। अगर वो एक वर्ड बोल रहा है, अब्रीविएशन को एज अ वन वर्ड वो प्रेजेंट कर रहा है, लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, तो आपको लेटर बाय लेटर नहीं लिखना है, एज अ वन वर्ड लिखना है। अगर उसने लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस किया है किसी भी अब्रीविएशन को, तो आपको मराठी फॉन्ट में ही लेटर बाय लेटर ही लिखना है। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। नेक्स्ट चले। Yeah, it's clear. तो अब्रीविएशंस के बाद आपका आता है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स हम किसको बोलते हैं? कोई किसी को कहीं पे आइडिया है? हम कंपाउंड वर्ड्स किसको बोलते हैं? कभी हमने सुना है कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? समास के बारे में सुना है आप लोग? अगर मतलब किसी का अगर सब्जेक्ट कभी हिंदी रहा होगा, आपने कभी ग्रामर में समास सुना है? समावेश ऑफ टू वर्ड्स टू गिव अ वन वर्ड मीनिंग। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके मैं तो आपको बता ही देती हूँ। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ या तो फिर दो वर्ड या फिर दो फ्रेजेस होता है। कैसे? एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक हिंदी में ही बता रहे, रसोई घर है दो वर्ड, घर एक अलग वर्ड है, रसोई एक अलग वर्ड है, बट ये दोनों जब कंबाइन होते हैं वो एक वर्ड एक मीनिंग देता है। ऐसे वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है। आपका कहीं पे आप अपने, हम जब इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, तो वो हाइफन के साथ लिखा आता है, ब्रदर्स पे हाइफन इन हाइफन लॉ, ऐसा लिखा जाता है। ये सारे आपके कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स का एक लिस्ट आपको दिया जाएगा। आप उसको कॉमनली जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है, आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। फॉन्ट आपका रहेगा टोन इंग्लिश वाला होगा। एग्जाम्पल, कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसा लिखा जाता है जो जिसमें सिर्फ स्पेस होता है। एग्जाम्पल, आइसक्रीम, आइस स्पेस क्रीम लिखते हैं हम लोग। आप ब्रदर इन लॉ ही ले जाइए, उसमें हाइफन सेपरेटेड होता है वो। कोऑर्डिनेटर, CO हाइफन ऑर्डिनेटर होता है वो। तो ऐसे जो कंपाउंड वर्ड्स है वो आपको एक लिस्ट में दिया जाएगा। ध्यान में रखना, जैसे ही ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिलता है, आप उनको टोन वही जैसे मतलब जैसे ही स्पीकर बोलता है आपको एग्जैक्टली उसी टोन में लिखना है, बट फॉन्ट आपकी मराठी लैंग्वेज का ही होना चाहिए। समझ में आ गया? कंपाउंड वर्ड्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? आपको कंपाउंड वर्ड्स का एक लिंक No. गूगल का लिंक मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, हम आपको हेल्प के लिए एक डिक्शनरी हेल्प दे देंगे। हम आगे बढ़े। Yes, ma'am. नेक्स्ट है पंक्चुएशन। हम पंक्चुएशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे नहीं, क्योंकि ऑडियो है तो ऑडियो में नॉर्मली पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा पंक्चुएशन ज्यादा यूज करना है। कुछ कॉमन पंक्चुएशन है जैसे एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क और कॉमा। ये तीन ऐसे पंक्चुएशन हैं जो हमें पता है कि वो कहाँ यूज हो सकते हैं। और एक है हाइफन, ऑलरेडी बोला गया है कि कंपाउंड वर्ड्स में हम यूज करते ही हैं वो पंक्चुएशन को, बट यूजुअली हम उसको हर जगह यूज नहीं करेंगे जब तक नेसेसरी ना हो, वरना हर वर्ड आपका कंपाउंड वर्ड कहलाएगा, जो कि ट्रांसक्रिप्शन रूल के खिलाफ है। तो हम कॉमनली क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क और कॉमा। कोई किसी को सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, कोई किसी को ग्रीटिंग्स विशेस भेज रहा है, तब एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज होता है। कहीं पे कोई किसी को क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क यूज करोगे। आपको कहीं लगता है कि नहीं मुझे फुल स्टॉप देना चाहिए,
बट शायद ये होगा नहीं होगा, जहां पे कंफ्यूजन हुआ आप वहां पे कॉमा दे सकते हो। लाइक एक सेंटेंस खत्म हुआ, मेरा आज ऑफिस से छुट्टी है, आइडियली इसके बाद हम फुल स्टॉप दे सकते हैं। बट अगर स्पीकर कंटिन्यू बोल रहे हैं आज ऑफिस छुट्टी है, पता नहीं नहीं मुझे सब्जी खरीदने जाना है, तो वहां पे आप एक बीच में आज ऑफिस छुट्टी है के बाद एक कॉमा दे सकते हो। गॉट इट? यस मैम। अच्छा, पंक्चुएशन के बाद आता है आपका फिलर वर्ड्स। हम फिलर वर्ड्स किसको बोलते हैं? हम फिलर वर्ड्स बोलते हैं, या फिर एक हेजिटेशन एक वर्ड्स आता है हम फिलर वर्ड्स बोलते हैं, या फिर एक साउंड जिसमें हम डिनायल या फिर यस बोलते हैं। एग्जाम्पल है, आपको कोई कुछ पूछता है, हाँ हम्म, ऐसा जो हम साउंड करते हैं, का मतलब हमें समझ में आता है यस, का मतलब समझ में आ गया नो। तो जहां पे ऐसा यस वाला आपको ऐसा वर्ड्स मिलता है, हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ मिलता है, तो ये सारा आप वहां पे यस लिखोगे, बट अपने मराठी फॉन्ट में। जहाँ पे ऐसा कुछ डिनाइल वाला आपको कोई वर्ड्स मिलता है, जो कि वर्ड तो है नहीं, एक ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को, या फिर आप कंटिन्यू कर रहा है कॉन्वर्सेशन को, वैसे वर्ड्स के लिए आप नो लिखोगे बट मराठी फॉन्ट में। बट कहीं पे सिर्फ ऐसा वर्ड आता है, जैसे बात करते करते यस आई, ऐसे बोलते बोलते हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसा वर्ड्स को आपको इग्नोर करना है। जहां पे ये वर्ड्स किसी चीज के जवाब के लिए यूज होता है, हाँ या ना में, उसके लिए आपको यस और नो मराठी फॉन्ट में लिखना है। क्लियर है? Yes. मुझे सिर्फ एक एक लोगों से सुनाई दे रहा है यस, बाकी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, नो आइडिया। Yes, it's clear. फाइन। कहीं पे बहुत बहुत बार ऐसा होता है, स्पीकर बोलते बोलते, जब हम लोग कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, स्पीकर बोलते बोलते दो वर्ड्स को एक वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, लगा के बोल देता है। आपको जहां पे भी सब पता चलता है, सेंटेंस सुनने के बाद आइडियल हमें समझ में आ जाता है कि हाँ नहीं, यहाँ पे तो दो वर्ड सेपरेट होना चाहिए, एक साथ बोल दिया है। आपको पता है कि वो वर्ड सेपरेट है और सेपरेट होना चाहिए, तो आप उसको एग्जैक्टली जैसे वो रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए, आप उसको वैसे ही लिखोगे। स्पीकर अगर कोई भी दो रेगुलर वर्ड्स को मिक्स कर दे रहा है, एक ही साथ बोल दे रहा है, एक साथ मत लिखना उसको, आप जैसे रिटर्न फॉर्मेट में विथ स्पेस लिखना चाहिए वैसे ही लिखना। ठीक है? यस मैम। किसी को पूछना है इसमें? अब एग्जाम्पल ही ले लीजिए, मैं बोलती हूँ अब आइसक्रीम खाने का मन है, हम नॉर्मली आइसक्रीम खाने का मन है सभी समझते हैं, ठीक है लिख दो आइसक्रीम, लिख, गलती से उसने बोल दिया आइसक्रीम खाना, अभी जैसे मैंने बोला कि स्पीकर जो बोलेगा वैसा लिखना है, इस चक्कर में अगर आप लोग आइसक्रीम को एक ही वर्ड बना दिए, क्योंकि स्पीकर ने तो एक ही बार में बोल दिया, फिर वो गलत है। हम जब भी लिखते हैं रिटर्न फॉर्मेट ही है कि आइसक्रीम में आइस एक वर्ड है, स्पेस देके क्रीम अलग वर्ड लिखा जाता है। ठीक है? मैम अगर इसमें किसी तरीके का मिस प्रोनाउंस होगा, जैसे एडमिन बोलना था और एडमरीन बोल दिया, और तो इसको किस तरीके से करेंगे? इसको सही करना होगा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी वर्ड प्रोनाउंस हुआ है उसी को ही टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, आप करेक्शन नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है? वो मिस प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्यों बोला गया है? अब ऐसा हो सकता है जैसे
आप लोग नॉर्मली आपके महाराष्ट्र में ही बहुत सारे डायलेक्ट्स है। एक वर्ड को आप लोग ई की मात्रा आ की मात्रा में भी डिफरेंस हो जाता होगा, या फिर जहाँ पे आप बोलते हो गया था, कोई गया छी बोल रहा होगा, गाँव छा बोल रहा होगा। बहुत सारे डायलेक्ट्स में वो चेंजेस हो जाता है वहां पे। तो जैसा बोला गया है आपको एग्जैक्टली वैसा लिखना है, वर्ड का करेक्शन नहीं करना है, बट मतलब मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड को करेक्शन नहीं करना है। ट्रांसक्रिप्शन में जैसा बोला गया है उस एक्चुअल वर्ड के हिसाब से आपको ट्रांसक्राइब करना है। ओके मैम। ठीक है। दूसरा है आपका पार्शियल वर्ड्स। पार्शियल वर्ड्स क्या होता है? अम, आपका कहीं पे भी स्पीकर ऐसा होता है, बोलते बोलते कहीं पे या तो फिर स्पीकर का वर्ड का पहला लेटर वो रिपीटेशन पे चला जाता है। स्कूल बोलते होते स्क, बहुत बार हम लोग रिपीट कर लेते स्कूल, बोलते बोलते ऐसा हो जाता है। कभी कभी हम लोग बोलते बोलते वो स कट जाता है, कूल हो जाता है। मैं कूल छोड़ने जा रहा हूँ, वो कूल छोड़ने जा रहा हूँ तो नहीं होगा, वो स्कूल ही होता है। तो आपको वो वर्ड आइडेंटिफाई करके सही वर्ड ही ट्रांसक्राइब करना है। जैसे एग्जाम्पल ये है, कोई बोलते बोलते ये बोल दिया ऐसा किसी ने बोला है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये यही वर्ड है और मुझे लिखना है। सॉरी, ये ऐसा नहीं बोला जाएगा, रॉन्ग वन। बोलते वक्त अगला इंसान ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये कुछ इस तरीके से टिफ टिफ इन ऐसा आया, तो हमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलना चाहता है और लिखना यही है। ट्रांसक्राइब आपको ये करना है, बट अपने लैंग्वेज में करना है जो जो वो वर्ड बोल रहा होता है। ये होता है आपका पार्शियल वर्ड। कभी कभी बोलते बोलते हो सकता है कि उसका अम, कोई बोलते ऐसे मैं फिन लेके आया हूँ, तो ऐसा तो मैं फिन लेके तो कुछ है ही नहीं, मैं टिफिन लेके आया हूँ। या फिर आपको जो उस कॉन्वर्सेशन में सही लगे आप लिख सकते हो, जो आपको लगे कि वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है वहां पे। किसी को इस बात में डाउट? Yes, it means हमें simply करेक्ट वर्ड लिखना है, राइट? करेक्ट वर्ड लिखना है, हाँ। मतलब जो भी आपको करेक्ट वर्ड ऐसे उस वो प्रॉपर ऐसा नहीं सेंटेंस होना पे चाहिए कि वो अगर टिफ टिफ इन लिख बोल रहा है आप उसको टिफ टिफ इन लिखो, ऐसा नहीं। वो टिफ समझ। टिफ इन मतलब टिफिन ही है, उसको आइडेंटिफाई करके राइट वर्ड ही लिखना है आपको। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। कोई भी नॉन नेटिव वर्ड जो विद इन द सेंटेंस बोला जाता है, लाइक ट्रेन, इंटरनेट, बस, फोन, ये सब आपको अपने रीजनल लैंग्वेजेस के फॉन्ट में ही लिखना है। कभी कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी आएगा कि स्पीच पे जब स्पीकर बात कर रहा है, गलती से वो वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड वो नहीं बोल पाता, वो उस वर्ड को बोलते बोलते उसने कुछ अलग वर्ड बोल दिया। वो कोशिश करता है कि सेंटेंस को कंप्लीट करे, बट वो उस वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं होता है। आप वैसे वर्ड्स को आपको चेंज करना है, आइडेंटिफाई करके चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूं हाउ इज द वेदर हियर, सेंटेंस तो सही है, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ हाउ इज द वेदर हियर, वो तो गलत है। वो तो हाउ इज द वेदर देयर होना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप ही को पूछूंगी, तो वो हियर तो नहीं होगा, वो देयर होगा।
कॉलिकल असेट्स, कॉलिकल वर्ड्स आपको पता है, जो जैसा वो डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स के ऊपर वो स्लैंग्स डिफर करेगा आपका कॉलिकल वर्ड्स, तो वो जैसा ही बोला जाता है आपको उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन द सेंस ट्रांसक्राइब करना है आपके रीजनल लैंग्वेजेस में। इतने ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स आप लोगों को क्लियर हुए? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट है, दे कैन आस्क मी। कोई भी पॉइंट में किसी को डाउट हुआ? मैं एक एक करके पॉइंट्स पूछते जा रही हूँ, किसी को डाउट होता है तो वो बोल सकता है ये पॉइंट मुझे समझना है। नंबर, डेट्स एंड करेंसी कैसे लिखना है आप लोगों को समझ में आ गया? When you people will not answer anything, I will consider कि yes. एब्रीवेशन समझ में आ गया आप लोगों को? कंपाउंड वर्ड समझ में आ गया? पंक्चुएशंस कहाँ पे यूज होंगे? किसी को डाउट? Can you सॉरी। please explain compound words again? एक बार फिर से। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स किसको बोला जाता है? कंपाउंड वर्ड्स नॉर्मली हम लोग हिंदी के डिक्शनरी में उसको समास बोला जाता है। समास का मतलब ये होता है कि जो दो वर्ड्स दो फ्रेजेस को ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल चीज बनाए। या ऐसा हो सकता है दो से ज्यादा वर्ड्स भी यूज कर सकता है। एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए मैंने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ। हिंदी में माता पिता जब आप लिखते हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? माता हाइफन पिता लिखते हैं जब दोनों को एक साथ बोला जाता है। बट हैं तो दोनों दो ही अलग अलग एंटिटी, राइट? अलग अलग नेम्स है, बट उनको एक कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए माता पिता बोला जाता है। तो ऐसे चीजों पे क्या किया जाता है, हम लोग कंपाउंड वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ हम स्पेस या फिर हाइफन पे लिखते हैं, बट वो भी हमें वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है जो डिक्शनरी में है। अपने मर्जी से हम लोग कहीं पे स्पेस कहीं पे हाइफन नहीं दे सकते, उसको एक्चुअल डिक्शनरी फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे वो हर जगह लिखा है ब्रदर हाइफन इन हाइफन लॉ। आइसक्रीम लिखा गया है तो आइस स्पेस क्रीम लिखा गया है। मदरहुड लिखा गया है तो आपको वहां पे मदरहुड आपको एक ही वर्ड मिलेगा, जबकि मदर और हुड दोनों ही उसका अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग है। तो वो डिक्शनरी फॉर्मेट के हिसाब से लिखा जाएगा। इसलिए हमने कहा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होंगे, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, मीनिंग समझ के रखो। हम एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कॉमन यूजेबल वर्ड है, बट यू हैव टू मेक इंश्योर कि वो वर्ड सही से यूज हुए। कुछ डाउट? नहीं, it's clear. क्लियर? ठीक है। पंक्चुएशन क्लियर है, फिलर वर्ड्स क्लियर है हमें? वर्ड मर्जिंग नहीं करना है, ये हमें क्लियर है। मिसप्रोनाउंस के वर्ड्स को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमें पता है। वर्ड रिपीटेशन या फिर लेटर रिपीटेशन ऑफ एनी सिंगल वर्ड कैसे हैंडल करना है, वो हमें पता है। नॉन नेटिव वर्ड्स अगर स्पीच में आते हैं तो कैसे हैंडल करना है, ये हमें पता है। अच्छा, नॉन नेटिव वर्ड से मुझे याद आया, अगर मैंने आपको इन्फॉर्म किया ट्रेन, बस, इंटरनेट, फोन, टीवी, ये सब तो आप अपने इंग्लिश वाले फॉन्ट, इंग्लिश वाले वर्ड्स को हिंदी अपने इस वाले फॉन्ट में लिख दोगे, मराठी वाले फॉन्ट में लिखोगे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, आप उनका क्या करोगे? अगर किसी ने बोला मुझे कुक करना है, तो किस फॉन्ट, तो कैसे लिखोगे? उसको इंग्लिश में लिखोगे या फिर उसको अपने मराठी फॉन्ट में लिखोगे? मराठी में ही तो कुकी लिखूंगी। ठीक है, फाइन। अच्छा, तो अभी आपको इसमें नेक्स्ट आपका आता है एग्जैक्ट वर्ड करेक्शन, सॉरी रॉन्ग वर्ड करेक्शन।
कहीं पे कोई भी अगर सेंटेंस कंप्लीट करवाता है स्पीकर बट वहां पे वो वर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है उस सेंटेंस को, तो हम उसका एग्जैक्ट वर्ड जो है आइडेंटिफाई करके वहां पे लिखना है। क्लियर है? ये आपका ट्रांसलेशन का गाइडलाइंस था। सेगमेंटेशन में हमें अच्छे से समझ में आ गया, 30 सेकेंड्स का एक सेगमेंट होगा, 10 सेकेंड्स के पॉज पे ही सेगमेंट हम स्प्लिट करेंगे। 30 सेकेंड का स्प्लिट हो सकता है 10, कहीं पे भी स्प्लिट हो सकता है। जो एक 30 सेकेंड का सेगमेंट है, अगर हमें स्प्लिट करने को मिला जहां कहीं पे भी 7 सेकेंड का ऑडियो है, लेट्स से 20 सेकेंड्स का ऑडियो है और हमें सेगमेंट करना है, तो 20 सेकेंड्स के ऑडियो में जहां से स्पीच शुरू हुआ है जहां स्पीच खत्म हुआ है, हमने एक ही सेगमेंट बनाया। बट हमें पता चला कि 20 सेकेंड के स्पीच के अंदर या फिर ऑडियो में एक जगह पे 10 सेकेंड का गैप है, तो जहां पे 10 सेकेंड्स का हमें कंटिन्यूस साइलेंस मिला, हम वहां पे सेगमेंट को ब्रेक करेंगे और 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे उस 20 सेकेंड्स के स्पीच ऑडियो को। ये होता है स्प्लिटिंग। देन नेक्स्ट, कहीं पे हमें क्वेश्चनिंग सुनाई दे रहा है, कोई एक स्पीकर पूछ रहा है, दूसरा स्पीकर जवाब दे रहा है, तो दूसरे स्पीकर के एक एक वर्ड के जवाब के बीच में जो साइलेंस है, हम वहां पे पॉज टैग यूज कर सकते हैं। ये आपका सेगमेंटेशन का रूल है। टैग्स हमें खुद से लिखना नहीं है, टैग्स हम अपने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे, 100+ टैग्स हैं। दिस इज व्हाट योर शून्य प्लेटफॉर्म इज। बाकी लाइव गाइडलाइंस आपको आईडीज के टाइम मिलेगी। किसी को कोई भी डाउट, टीम हेड्स, टीम मेंबर्स, मोस्ट वेलकम टू आस्क। No Sorry? doubt yet. Clear? No, it's clear. Yeah, it's clear. Fine. So what I would expect, Mahi, and sorry, मुझे आपका नाम नहीं पता, संतोष जी हैं क्या कॉल पे? हाँ। माही और संतोष जी, मुझे सिर्फ 2 चीज चाहिए। आपके टीम में से ट्रांसक्राइबर कौन रहेगा और क्यूए कौन रहेगा? ठीक है, ये मुझे आप एक मतलब आप अपने एक ही लिस्ट में अपने आईडीज कलेक्ट करके दे दीजिए। मैं संतोष जी और माही आप दोनों ही कॉल पे रहिए। आई वुड रिक्वेस्ट अदर टीम मेंबर्स टू प्लीज लीव।